Welcome students. In today's session we are taking the topic solubility of solid and gas in a liquid. Okay, solubility means whenever any solid or gas is dissolved in a liquid. So how much part is dissolved and which factors affect the solubility? This will be considered in today's session. First of all, solubility. Students, solubility means it's a maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of a solvent at a specified temperature. Okay, so this is known as a solubility. Means the how much maximum amount is dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. So it depends upon the nature of the solute and the solvent as well as the temperature and the pressure. Let us consider the effect of these factors in the solution of the solid or a gas in a liquid. चलो तो अब हम पहले देखते हैं solubility of a solid in a liquid. Whenever any solid is dissolved in a liquid, so when it will be dissolved more and when it will be dissolved less. Now see the theory. So first of all, every solid doesn't dissolve in a given liquid, while sodium chloride and sugar dissolve readily in water, but naphthalene, anthracene are not dissolved in water, are not soluble in water. On the other hand, naphthalene and anthracene are readily dissolved in benzene, but NaCl and sugar do not dissolve in a benzene. The reason for it is generally polar solute can interact with polar solvent, so that polar solutes are soluble in polar solvent. Non-polar solute are soluble in non-polar solvent. Okay, because there will be interaction between non-polar components और उनके बीच में dispersion force supply होगा. That is done in 11th standard chapter number 4. Okay, तो मैं ये बताने जा रहा था कि यहाँ पे NaCl is an ionic substance, sugar. तो सुगर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो पाएगा. रीजन, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. ओके, एंड NaCl is an ionic substance. So in NaCl there will be two ions, Na plus and Cl minus. Okay, and here सुगर में OH ग्रुप होता है, OH अल्कोहलिक ग्रुप. ओके, तो वो अल्कोहलिक ग्रुप वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा. सिमिलरली नेप्थलीन और एंथ्रेसिन उसमें पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं है. दैट मीन्स दीज आर नॉन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पोलर सॉल्यूट्स dissolve in a polar solvents and non-polar solutes in non-polar solvents. In general, the solute dissolve in a solvent if the intermolecular interactions are similar in the two. Then we may say like dissolves like means polar then polar, non-polar then non-polar. This is the funda. When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in the solution, right? जैसे जैसे वो डिजोल्व होता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. सो डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस when a solid solute is added to the solvent and some solute dissolves and its concentration increases in the solution. Okay, some solute particles in a solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. Okay, तो जब
सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें जब एक दूसरे से जब कोलाइड होता है डिसोल्यूशन फॉर्म में, तो वो सेपरेट होते जाते हैं, तो वो सॉलिड आपको दिखेगा अंदर थोड़ा बहुत, बट जनरली दिस प्रोसेस इज डन इज ऑब्जर्व्ड जनरल इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बाकी में होता है, लेकिन अगर लेस कंसंट्रेशन होगा तो वो नहीं होगा। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। चलो ये तो पता होगा आपको, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर कंबाइंड, दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन, एंड देन सॉल्यूशन में से ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों अलग होंगे। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कंबाइंड, आर इंटरैक्टेड, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। एंड व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ओवर। ओके, नाउ वी आर टेकिंग द थ्योरी। At this stage, the concentration of solute in the solution will remain constant under the given conditions, that is the temperature and pressure. Okay? मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे वो सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जनरली डिसोल्यूशन बढ़ता है, जनरली बढ़ता है। लेकिन क्यों जनरली वर्ड बताया? क्योंकि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करो वैसे वैसे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा, और जब एक्सोथर्मिक होगा तब डिक्रीज होगा। ओके, चलो यहाँ पे आगे जाते हैं। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल यहाँ पे टोटल 3 डेफिनेशन हमें लर्न करनी है। डेफिनेशन नंबर 1 सॉल्युबिलिटी, ओके, सेकेंड डेफिनेशन डिसोल्यूशन, थर्ड डेफिनेशन crystallization, and here fourth one saturated solution. ओके, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब कि अभी भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज अनसेचुरेटेड। ओके, सो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर, and the solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute, then it is the saturated solution and it contains the maximum amount of solute. तभी तो वो undissolved form में भी आपको नीचे दिखेगा at the bottom of the vessel. Okay, thus the concentration of solute in such a solution is known as solubility. Simple. And earlier we have observed that the solubility of the one substance into the another depends upon the nature of substance. Then variables, the 2 parameters, temperature and pressure. तो चलो अब प्रेशर की बात करें तो पहले वो देख लेते हैं, ये वाला पैरा। तो प्रेशर डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट on the solubility of solids in a liquid, because there is no effect on solid or liquid. There is no effect of pressure on solid or liquid. That's why अगर हम ट्राई करें प्रेशर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट तो होती ही नहीं है। The reason for it is the solids and liquids both are highly incompressible. अगर हम प्रेशर अप्लाई करें फिर भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगी ही नहीं, and practically remain unaffected by changes in pressure. Okay, next one is effect of temperature. तो मैंने जो बताया वो ली शैटेलियर प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होगा। कैसे, चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चलो, जनरली ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल फॉर्म में है, एंड हियर वी आर गेटिंग सॉल्यूशन। ओके, चलो अगर हमने एंडोथर्मिक लिया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट कहां पे आएगी?
रिएक्टेंट साइड आएगी. And if we increase the temperatures, then new equilibrium is established in such a way that the affected term would be negligible. Means heat यहाँ पे reactant side है. अगर हमने temperature increase किया, means we are providing heat to this system. तो क्या होगा? It will decrease the heat by reacting. मतलब forward direction, मतलब solution ज़्यादा बनेगा. That means resolution ज़्यादा होगा. Endothermic की बात करें तो एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आएगी कौन सी साइड? प्रोडक्ट साइड. ओके, हीट आएगी प्रोडक्ट साइड. तो अगर अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, then heat will be reacted. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट हो जाएंगे. दैट मीन्स डिसोल्यूशन कम होगा. चलो पैरा देख लेते हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंजेस. कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन 2.0 जो आगे अभी दिया था, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वही इक्वेशन. This being dynamic equilibrium and must follow the Le Chatelier principle, right? And in general, if in a nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic, that is delta H greater than 0, and the solubility should increase with rise in temperature. And if it is exothermic, then the solubility should decrease. And these trends are also observed experimentally. तो experimentally भी प्रूव हुआ है. चलो experimental उसका एक रिजल्ट बताता हूँ मैं. सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, वाटर इज टेकन इनटू इट. ओके, और अगर हमने यहाँ पे थोड़ी शुगर डिसॉल्व की है तो पहले यहाँ पे हमने टेम्परेचर रखा है सपोज 5 डिग्री सेल्सियस. उतना ही पानी लिया है और उतना ही शुगर हमें डिसॉल्व करनी है. ओके, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर रखा है अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस. ओके, अमाउंट दोनों में सॉल्वेंट की सेम, सॉल्यूट की भी सेम, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंट. तो आपको पता चल गया होगा कि शुगर डिसोल्यूशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो हियर एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन डिसोल्यूशन विल बी मोर. तो यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस पे शुगर ज़्यादा डिसॉल्व होगी. अब यही एग्जाम्पल, यही दो बीकर हमने लिए यहाँ पे. अब यहाँ पे हमने सपोज कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया पानी में. तो आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? CaOH ट्वाइस. एंड हीट इज लिबरेटेड. रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक. ओके, दोनों में हमने CaO ऐड किया है. एंड सेम 5 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस. तो किस में ज़्यादा डिसॉल्व होगा? तो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर लेस होगा तो क्या होगा? ये डिसोल्यूशन प्रोसेस ज़्यादा होगी. 90 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन कम होगी. ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंटली बताया है ना, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर हुआ. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid. See, we know that many gases are soluble in water. Oxygen dissolves only to a small extent in water. कितना पता है? 100 ml वाटर में, लॉजिक ये है इसका कि 100 ml वाटर में सिर्फ 3.08 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकता है. एंड दिस क्राइटेरिया इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज. मैक्सिमम अमाउंट उतनी उसकी होती है एट 298 केल्विन टेम्परेचर. ओके, इट इज दिस dissolved oxygen which sustain all the aquatic life. On the other hand, HCl is highly soluble in water. Solubility of gases in liquid is greatly affected by pressure and temperature, both of the things. See, here for that one diagram is given to you. चलो वन प्रैक्टिकल उसके लिए करते हैं. Solubility of gases increase with increase of pressure.
And for solution of gas in a solvent, consider a system as shown in the figure 2.1a. तो देख लो यहाँ पे एक मास हमने लिया है W1 और ये पिस्टन है, आपको दिख रहा है ये। ओके, और W1 मास है उसके ऊपर। अब यहाँ पे आपको जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इतना, ये वाटर है और उसके ऊपर जो खाली जगह बचती है ना, ये है। तो अगर हम प्रेशर कम लगाएं तो क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा ना वो कम होगा। इफ वी अप्लाई मोर प्रेशर, देखो यहाँ पे कितना 3 टाइम्स W1 W2 W3, सो एट दैट टाइम ये जो सरफेस है लिक्विड सरफेस, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। Thus we can say that solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure. And during this practical we will keep the temperature constant. Okay, चलो टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं। The lower part is a solution and the upper part is in gaseous system at P pressure and T temperature. Assume this system is to be in the state of the dynamic equilibrium. Means under these conditions rate of the gaseous particles entering and leaving of the solution phase is the same. मतलब यहाँ पे पहले से equilibrium establish हो चुका है। Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. Means we are applying the pressure, जिससे पिस्टन नीचे की साइड शिफ्ट होगा। This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of solution. मतलब more number of gaseous molecules will be in contact with the liquid and the solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of gas above the solution and thus solubility increases. तो अगर आपको रीज़न पूछे तो आपको रीज़न आप लिख पाएंगे। ओके, और क्वेश्चन क्या है? With increase in pressure, solubility of gas in a liquid increase it at constant temperature. Okay, so solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure and inversely proportional to temperature. Okay, inversely proportional to the temperature. Okay, so solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature. क्यों ऐसा दिया है? At that time we will keep pressure constant. तो अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए तो प्रेशर कांस्टेंट, राइट? क्यों ऐसा दिया है? बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द रीजन फॉर इट इज, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स increases, as well as kinetic energy of the liquid molecules also increase. At that time the interaction between gas molecules and liquid molecules will not be proper. दोनों के बीच में interaction properly नहीं होगा. That's why we can say that here temperature is inversely proportional to the solubility. And same thing can be explained by Le Chatelier principle also, because gas solute plus liquid solvent,
So whenever solution is prepared, generally this reaction is an exothermic, means heat is written at product side. So here if temperature increases, at that time according to Le Chatelier principle, reaction will occur in backward direction. If temperature increases, then so as temperature increases, then reaction will occur backward direction. और बैकवर्ड डायरेक्शन में गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट दोनों सेपरेट हो जाएंगे, isn't it? तो ली शैटेलियर प्रिंसिपल से भी ये प्रूव हो गया. तो न्यू रिलेशन इज डेवलप्ड एंड दिस रिलेशन वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट हेनरी. ओके, ये हेनरी साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था. ओके, अब हेनरी ने जो प्रूव किया था, चलो अब उसकी बारी. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हेनरीज लॉ है क्या? तो देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. मतलब जितना प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. प्रोपोर्शन की साइन हटाओ. अब देखो, हाँ और एक थिंग, हेनरी ने सिर्फ यही दिया था सॉल्युबिलिटी. अब हमने कंसंट्रेशन के कितने सारे यूनिट्स पढ़े हैं. फॉर एग्जांपल मोलारिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V. ओके, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन. तो डाल्टन साइंटिस्ट ने परफेक्ट सॉल्युबिलिटी का यूनिट दे दिया, that pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. और कोई यूनिट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, ये डाल्टन ने दिया था, लेकिन ओरिजिनली दिस वाज हेनरीज लॉ. और प्रोपोर्शन की साइन हटाओ तो कांस्टेंट दिया. ओके, so this kh is Henry's constant. It is Henry's constant. P pressure equals kh into x. ओके, तो अब ये हेनरीज कांस्टेंट. चलो टेक्स्ट बुक की थियोरी एक बार देख लेते हैं. हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव relation between the pressure and the solubility of gas in a solvent, which is known as Henry's law. And rule is as follows: the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or a solution. This is the Henry's law. Dalton, a contemporary of the Henry, also concluded independently that the solubility of gas in a liquid solution is a function of the partial pressure, right, of the gas. And if we use the mole fraction of a gas in a solution as a measure of its solubility, then it can be said that the mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of a gas over the solution. And the most commonly used form of the Henry state is the अब main statement अब आया. The partial pressure of a gas in a vapor phase P is proportional to the mole fraction of a gas in the solution. और उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. Here kh is a Henry's constant, right? And if we draw a graph, अब देखो जनरली ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है, P इक्वल्स के एच इंटू एक्स. ओके, तो जनरली जब कोई भी हम y एक्सिस और x एक्सिस का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो उसके लिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन हम यूज करेंगे, y इक्वल्स mx प्लस सी. अब इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, मतलब प्लस 0 हम बोलेंगे. तो अब y एक्सिस पे हम क्या लेंगे बताओ? प्रेशर. x एक्सिस पे हम क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन. m के साथ जो कंपेयर करते हैं वो क्या होगा? वो होगा स्लोप.
और सी के साथ जो हम कंपेयर करेंगे ये क्या होगा, ये होगा इंटरसेप्ट। ओके, तो अब देख लो इसका ग्राफ यहां पे दिया है आपको। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर लिया P और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, यहाँ पे कंपाउंड ले लिया है, और फिर डिफरेंट पार्शियल प्रेशर अप्लाई किया और फिर कितनी सॉल्युबिलिटी मिली वो चेक की, तो उसका ये ग्राफ मिला। इसका जो स्लोप होगा दिस विल बी KH, और इंटरसेप्ट 0 होगा, क्यों, कुछ है ही नहीं। देखो दैट मीन्स ग्राफ विल स्टार्ट इन स्ट्रेट लाइन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अब डिफरेंट गैसेस के लिए ये KH वैल्यूज डिफरेंट होती है। तो वो टेक्स्ट बुक पे कुछ वैल्यूज दी है, उस वैल्यू से पता क्या चलता है कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिमेंबर दिस, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या स्टूडेंट्स, solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure, inversely proportional to temperature. Just a minute. And inversely proportional to the KH values. Okay, suppose एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये थियरी लेते हैं। सपोज आपको 4 गैसेस दिए हैं A, B, C and D, और सबके लिए KH वैल्यू बार में सपोज आपको दी है 3.2, 4.9, ओके, 8.1, ओके, एंड 2.3, और आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ओके, तो ये क्या होगा, चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब फर्स्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स KH वैल्यू सबसे कम, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, D की है। देन तो मतलब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, KH का इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो 2.3, उसके बाद आएगा 3.2, उसके बाद आएगा B, और उसके बाद आएगा C। इजी, चलो नेक्स्ट वन। अब इस हेनरीज लॉ के यूजेस, चलो अब ये ध्यान से देख लो। तो हेनरीज लॉ finds the several applications in the industry and explains some biological phenomena. Notable among these are, first of all, to increase the solubility of CO2 in a soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. इसलिए आप अगर बॉटल को स्टर करके फिर खोलते हैं तो फिर CO2 गैस बाहर निकलता है ना। Scuba divers must cope with high concentrations of the dissolved gases with while breathing air at the high pressure under the water, क्योंकि जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे बॉटम में जाते हैं अंडर वाटर में, जैसे जैसे डाउन जाता है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगा ना। इंक्रीज्ड प्रेशर increases the solubility of the atmospheric gases in the blood. When the divers come towards surface, लेकिन जब वो surface पे आते हैं तब क्या होगा, the pressure gradually decreases and this releases the dissolved gas and leads to the formation of bubbles of the nitrogen gas in the blood, and it blocks the capillaries and creates a medical condition, तो उसका नाम है bands, and which are painful and the dangerous to life. समझ में आ गया होगा।
स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे डाउन जाते हैं सी लेवल से, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। जैसे जैसे डाउन यहाँ पे अगर वो रहते हैं तो यहाँ पे जितना प्रेशर है उससे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ओके, किसमें, ब्लड में। लेकिन जैसे हम सरफेस पे आएंगे तब क्या होगा, तो फिर वो जो नाइट्रोजन गैस या तो फिर ऑक्सीजन गैस, तो उसके बबल्स बन जाते हैं, ओके। जिससे क्या होगा, वो कैपिलरीज जो भी होते हैं सब ब्लॉक हो जाती है, और उसका नाम है बैंड्स। टू अवॉइड द बैंड्स, द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, तो उसके लिए कौन सा, हीलियम गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, ओके। इससे क्या होगा कि गैस ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि हीलियम इज इनसॉल्युबल, दैट्स व्हाई। एट हाई अल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल इन द सेंस के अभी हम यहाँ पे जब रह रहे हैं तो अगर वो सी लेवल पे है तो फिर प्रेशर एग्जैक्ट 1 एटमॉस्फेयर होगा, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, हाई अल्टीट्यूड पे, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एंड दिस लीड्स टू द लो कंसंट्रेशंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड tissues of the people living at the high altitude or the climbers. Low blood oxygen causes the climbers to become the weak and unable to think clearly, and symptoms of the condition is known as anoxia. ओके, दोनों होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो फिर भी प्रॉब्लम, प्रेशर कम हो फिर भी प्रॉब्लम। अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो बैंड्स होगा, और प्रेशर कम हो तो एनोक्सिया होगा, जिससे क्या होगा कि जो हिल क्लाइंबर्स होते हैं तो वो ज़्यादा परफेक्टली वो थिंक नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं सकते कंप्लीटली कि क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, और कहाँ पे जाए जिससे हम बच सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। चलो, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो अभी मैंने बताया वही, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर व्हेन डिसॉल्व्ड। The gas molecules are present in a liquid phase, and the process of the dissolution can be considered similar to the condensation, and heat is evolved in this process. We have learned the last section that dissolution process involves the dynamic equilibrium और ली शैटेलियर प्रिंसिपल फॉलो होगा। अभी मैंने ये समझा दिया, तो जस्ट I have read this topic. And as dissolution in the exothermic process, the solubility should decrease with increase of temperature. Easy? तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपनी ये सब थ्योरीज कंप्लीट हुई। टोटल ये आपको थ्योरी 3 टाइम्स लिखनी है फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ओके, नेक्स्ट सेशन में इसके न्यूमेरिकल्स हम लेंगे बेस्ड ऑन दिस हेनरीज लॉ। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ। गुड बाय।